Good morning, students. Today we will start our civics chapter 5, working of institutions. So, students, institutions have the power of working, or institutions follow some rules and procedures. Students, for example, school is also institutions which follow some rules and procedures and have the power of working. As you know, democracy is not just about people electing their rulers, but in a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. In this chapter, we will study about the working of such institutions in a democracy. In class 8th, you have studied about these type of institutions. So, in this process, we come across three main institutions which play an important role in major decisions like legislature, executive, and judiciary. These are the three main organs of our government. First, let us take a brief summary of these three organs of the government. First, legislature. Legislature is that organ of the government which is responsible for making laws. For example, your parliament. Executive implements those law made by the legislature. Means executive implement the laws made by the legislature. Or judiciary is that organ of the government which punish those people who do not follow the laws made by the legislature or implemented by the executive. Okay, and in this chapter we take our examples from the working of the national level government, like your central government, union government, or just government of India. So let us start the chapter with some examples from the working of the government in your state. First, how is major policy decision taken? Student, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया ऑन अगस्त 13, 1990 को. The government of India issued an order and it was called an office memorandum. Office memorandum is means government order. ये government order issue किया गया, okay, जो अपने नंबर से जाना गया, okay, 3601 to 3190 जो दिया हुआ है. और किसने इसको साइन किया? The Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. इन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने इसको साइन किया इस ऑर्डर को. ये गवर्नमेंट जो ऑर्डर था, बेसिकली आप बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स देखते हो गवर्नमेंट के. फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने स्कूल में कोई इशू नोटिस देखते हो लगा हुआ है, कोई ऑर्डर प्रिंसिपल ने इशू किया हुआ. इस तरह से गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो डेली आप देखते हो. एंड दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि बहुत सालों तक ये कंट्रोवर्सी का इशू बना रहा. ओके, सो लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर. ये जो आपके पास सामने पेज है, ये इसकी कॉपी है इस डिसीजन की. बेसिकली इसमें क्या था इस डिसीजन में? दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. इसमें ये कहा गया था कि 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज under the government of India reserved for the socially and economically backward classes. अब एक नई क्लास आई है, SEBC. Okay, SEBC क्या है? Is all those people who belongs to caste that are considered backward by the government. मतलब जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, जॉब नहीं है, गवर्नमेंट ने उनको बैकवर्ड डिक्लेयर किया है, वो आते हैं SBC के अंडर. तो इस ऑर्डर में ये कहा गया कि 27% वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज जो सिविल पोस्ट होंगी सर्विसेज की, उसमें इनके लिए सीट रिजर्व रखी जाए. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? जो डिसीजन मेकर्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि जिन्होंने साइन किया वो डिसीजन मेकर थे, वो उसका एक पार्ट थे. बेसिकली इन 8th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिसीजन मेकर्स. लेट अस स्टार्ट
some of the main points that you covered then. First, जैसे president is the head of the state and is the highest formal authority in the country. उसके बाद prime minister is the head of the government, as you have already studied in 8th class, and the parliament, which consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, तो ये सब होते हैं डिसीजन मेकर. अब जो ये ऑफिस मेमोरेंडम था, इसने मतलब ये हो गया, ऑफिस मेमोरेंडम इशू हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979. एक कमीशन अपॉइंट किया गया 1979 में. इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, इसीलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है. इस कमीशन को क्या कहा गया है? टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया. जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना, एंड रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, और उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेप्स देना. तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन. ओके, पहला रिकमेंडेशन क्या था? 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. पहला तो वही था 27%. ओके, अच्छा, अब पार्लियामेंट में ये मुद्दा बन गया डिस्कशन का. इस रिपोर्ट के पेश होते ही, रिकमेंडेशन के पेश होते ही, द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. सालों तक पार्लियामेंट में डिस्कशन, पार्टीज kept demanding the implementation of the commission recommendation. पार्टीज ने रिकमेंड किया इस कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड देन केम द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989. अब लोकसभा के इलेक्शंस आ गए. इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल ने प्रॉमिस किया कि इफ वोटेड टू पावर, अगर वो पावर में आते हैं तो इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट. तो वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को रिकमेंड करेंगे. ओके, और जनता दल, जैसे ही जनता दल ने गवर्नमेंट बनाई, उनके जो लीडर थे वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड several developments took place after that. अब क्या था कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन. इसको रिकमेंड किया गया. ऑन अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस. उसके नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को इस डिसीजन के बारे में through a statement in both the houses of the parliament. उसके बाद the decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officer of the department drafted an order in the line. ठीक है, ये ऑर्डर फिर ड्राफ्ट किया गया, इसका जो नंबर दिया गया आपको. फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ ये जो टॉपिक था रिकमेंडेशंस का, जो लॉ बनने के लिए तैयार हो रहा था कि लॉ बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो महीनों तक एक डिबेट का इशू बना रहा. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स were full of different views and opinion on this issue. कुछ ने इसको प्रोटेस्ट किया, कुछ ने इसे फेवर किया. ओके, जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो लोग थे जो एजुकेटेड दूसरी क्लासेस से बिलोंग करते थे. वो कहते कि हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बचेंगी. और जो लोग रिजर्वेशन मांगना चाहते थे वो इसको फेवर कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस in detail. Okay, after listening to this video you will read the topic with the help of your book. Thank you students, have a nice day.